guys, welcome to my YouTube channel Study Shiv with Krati 2, and with this video we're gonna start a series for semester 3 students for B Honors Political Science, Delhi University. In case you are not from Delhi University and you can resonate and you can find the identical concept that I'm gonna explain into this video, even if you are from any other university, be it IGNOU, be it any other university or state university, you can refer this thing. So this video is going to be about the concept that we have to cover is that ये आपका political theory concept and theory करके एक paper है. We're gonna cover that paper into this video. Now the very first chapter जिसमें आता है वो है freedom, and each concept that I'll be covering from these unit will be into two parts. So हर unit का max आपको दो part मिलेगा. वैसे भी आप लोगों के दिसंबर में एग्जाम्स आने वाले हैं, तो we will cover all these chapters maximum in 10 to 12 minutes. Okay, let's get started with this one. But before starting, would like to tell you all there is a crash course available for the BA Honors Political Science student, जिसमें मैं live पढ़ाती हूँ. पेड नोट्स होते हैं, उसके प्रॉपर क्लासेस होती हैं, डिटेल में विद रीडिंग आते हैं. अगर आप वो लेना चाहते हैं, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी एट द गिवन नंबर. यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. So we're gonna talk about the freedom, and freedom में बहुत ही हमें दो तीन ही कॉन्सेप्ट देखने हैं, which is negative and positive. हम इस particular section में कवर करेंगे along with the criticism, and स्वराज emancipation आपका second part में कवर होगा. So let's understand liberty, you know what it is about, why it is so important. एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जनरली इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको क्वेश्चंस आते हैं कि ईसा बर्लिन का कॉन्सेप्ट कौन सा है, बिकॉज इफ यू आर लर्निंग एनी पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट, आपको उससे जुड़े हुए जो फेमस थिंकर है जिनका मेन कंट्रीब्यूशन है वो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए. इट वुड मेक योर आंसर रियली वेल. Why liberty is so important? Exactly हमारा इससे मतलब क्या है? Basically, liberty is the condition or the concept that allows one to act freely according to their will. तो आप जो करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं. Liberty, is it about that कि कोई भी interfere ना करे, or something that one can reach up to their potential by themselves? We have to discuss this thing, and we will start with our negative liberty. देखो लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट क्लास 11 का पॉलिटिकल थ्योरी करके आपका एक बुक है, उसमें भी था. अगर जो ह्यूमैनिटीज से नहीं है, पॉलिटिकल साइंस का आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, दैट इज फाइन, यू कैन स्टिल लर्न. नेगेटिव एंड पॉजिटिव में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है. अप टू सेकेंड ईयर मुझे भी नहीं समझ आता था, तो थोड़ा सा थियोरेटिकली देखते हैं, फिर हम डिटेल में जाएंगे. नेगेटिव लिबर्टी से मतलब है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, अ कंडीशन when you are not going to be interfered by anyone, especially यहाँ पे हमारा state के context में है. For instance, I want to start my business and state will not interfere. So I am free, and this is my negative liberty. I wanted to express my opinion, I wanted to express my knowledge and wanted to share with the people here sharing in our video, and this is also my negative liberty, that is allowing that no one is going to stop me from doing this one and I am free. So simple, it means to say freedom from any kind of interference. We are talking about negative liberty. अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या न्यूज़पेपर जो है बियास्ड ओपिनियंस नहीं देना चाहते हैं, वो खुल के जो है प्रतिक्रिया देना चाहते हैं किसी मैटर पे, मीन्स किसी भी तरह की सेंसरशिप नहीं होगी वो. नेक्स्ट, they mainly emphasize onto the individual right. So it's about Krati, it's about you, it's not about the entire group, it's about the individual, to maintain the individuality. कल को आप YouTube चैनल खोलना चाहे, कल को आप किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में कुछ बोलना चाहे, you should be free to express your opinion because we do have this thing. And next, we can just say limited seats. It just says that there should be a emphasis onto the individual rights and there should be a limited seat. अब thinkers हर एक कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए, जैसे मैंने बोला कि थिंकर बहुत ज्यादा जरूरी है. इसमें आते हैं आपके हॉब्स, जॉन लॉक और जेएस मिल. हॉब्स, लॉक एंड जेएस मिल, इन सब ने लिबर्टी के बारे में बोला एंड उसी को इन सब ने लिबर्टी के बारे में बोला, एंड इसी कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड करते हुए ईसा बर्लिन, he is one of the philosophers जिन्होंने 1958 में ऐसे लिखा था टू फॉर्म्स ऑफ लिबर्टी. उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दो
टाइप बताए थे। नाउ यू टेल मी व्हाई लिबर्टी इज सो इम्पोर्टेंट दैट आपके कोई भी कॉन्सेप्ट हो, डेमोक्रेसी हो गया, जस्टिस हो गया, राइट्स हो गया, दीज आर यूजलेस अगर हम लिबर्टी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री मोस्टली बिलीव इनटू दिस थिंग। नाउ ये बात अलग हो सकती है whether they are emphasizing onto the negative one or the positive one. So I hope the negative one is more clear to you all. Let's go for the positive liberty. Positive liberty से मतलब है when one is free to act like the way they wanted to do it. For instance, let's say that I have the condition to do everything to reach up to my potential. अब मुझे मान लेते हैं एक गरीब है, ठीक है, गरीब बच्चा है, उसको जो है फ्री छोड़ दिया, सरकार किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगी, सोसाइटी उसको किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेगी, बट उसके पास बेसिक नीड्स ही नहीं है। वो बेसिक नीड्स जब सोसाइटी उसको प्रोवाइड करेगी, मीन्स टू से स्टेट प्रोवाइड कराएगा, तब वो अपने पोटेंशियल पे पहुंच पाएगा। फॉर इंस्टेंस, यू नीड योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स ने आपको बोला दैट यू आर फ्री वट एवर यू वांना डू इट, बट यू वांना पे द फी, right? So when they will be paying the fee, then you will be able to go to the college or take the coaching, and then आप अपने potential का use कर पाओगे। तो without resources कोई आपको अकेला छोड़ दे, वो अकेला भी तो useful नहीं होगा। Example के लिए right to education, not just absence of restriction here they are talking about, इनके हिसाब से capacity to use the freedom, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उस फ्रीडम को यूज कर पाए। अब रूसो का एक कॉन्सेप्ट है बहुत फेमस, जनरल विल। जिनको नहीं पता है, रूसो ने कॉन्सेप्ट दिया था जनरल विल। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि अभी आपके बाकी टॉपिक्स आएंगे, उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग रूसो का मानना यह है कि सोसाइटी, हम सब ना वॉलेंट्री एक एक्ट में आए थे, हमने वॉलेंट्री अपनी कंसेंट दी है दैट वी विल क्रिएट अ स्टेट, एंड स्टेट के क्रिएशन में हम सब लोग अपनी थोड़ी थोड़ी लिबर्टी जो है वो गिव अप कर देंगे। आप जब ग्रुप में रहते हैं या कम्युनिटी में रहते हैं तो आप आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। व्हेन यू आर वर्किंग इन अ टीम, यू हैव टू लिसन टू द ईच मेंबर, राइट? समवेयर थोड़े थोड़े ओपिनियन सबके सप्रेस होते हैं, बट टुगेदर हम वो करते हैं जो सबके लिए अच्छा हो। जनरल विल वही है। पॉजिटिव लिबर्टी भी काइंड वही है कि आप देखो ऐसे किसी को अकेला नहीं छोड़ सकते, ठीक है? आप इंटरफेयर तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव चीजें करनी होंगी। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें हेल्थ केयर सिस्टम ले सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो। सरकार ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए हैं, ऑल्दो देयर इज नो इंटरफेरेंस, बट व्हाट अबाउट दोज हु कैन नॉट अफोर्ड द बेसिक ट्रीटमेंट, फॉर देम वी डू हैव द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। वी डू हैव द एजुकेशन, तो जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए फ्री है, तो वो बेसिक कंडीशन एक प्रोवाइड की गई है। स्कॉलरशिप इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द पॉजिटिव लिबर्टी। मीन्स टू से मेरे पास एक सीढ़ी है, लेकिन मेरे को थोड़ी सी चढ़ने में मदद लगेगी, ठीक है? वो इंटरफेयर नहीं होना चाहिए कि मेरे को कोई चढ़ने नहीं देगा, बट थोड़ी मदद मुझे लगेगी। एयरपोर्ट्स पे जो आपके व्हील चेयर होती है और इंडिया में जो रिजर्वेशन है, वो भी आपका पॉजिटिव लिबर्टी की कैटेगरी में आएगा। Now, to conclude all of it, let's see here. Comparison criticism देखते हैं, तो नेगेटिव से इतना तो समझ आ गया, this can lead to inequality somewhere, because इसमें आपको छोड़ दे रहे हैं। आप फ्री हैं, आपको जो भी करना है ना? फ्री है मीन्स टू से जरूरी नहीं है कि मेरे पास अपनी चीजों को कंटिन्यू करने के लिए वो बेसिक रिसोर्सेस हो। अब बात करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी, विच इज दिस कैन जस्टिफाई अथॉरिटेरियनिज्म इन द नेम ऑफ कॉमन गुड। कई बार क्रिटिसिज्म, कोई भी टॉपिक हो, जितना भी अच्छा हम कर रहे हो, उसके कुछ ना कुछ जो है फॉल्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं जिनको हमें ध्यान से देखना होगा। इसकी कमी ये है कि अगर सरकार बोले कि वी आर हियर टू हेल्प यू, ठीक है, रिजर्वेशन के नाम पे लेट्स से, और किसी को मदद करने के नाम पे सरकार फिर कुछ ऐसा चीज लेके आए और बोले कि ये तो तुम्हारे अच्छे के लिए है, सो दिस can lead to authoritarianism in this concept. बर्लिन के अकॉर्डिंग, और ईसा बर्लिन ने जो ये कॉन्सेप्ट दिया है, उन्होंने वार्निंग भी दिया है कि जब तक पॉजिटिव एंड नेगेटिव का आप बैलेंस सेट नहीं कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी लिबर्टी काम की नहीं है। बिकॉज एक्सट्रीम अगर आपका नेगेटिव लिबर्टी हो गया, I will start making video and I'll just say anything and will share anything on the name of knowledge, and that I cannot do it on the name that मुझे तो interference ही नहीं है किसी चीज की, and no one can stop me. Also, positive liberty could be dangerous because then state or the government can put that, see, we need to put a ban onto your expressing opinion. We need to bring this kind of a thing to you, that kind of a thing to you. We need to bring this policy, that policy, and many other things.
तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। नेगेटिव लिबर्टी में आप बिजनेस का एग्जांपल भी दे सकते हो कि भाई किसी को बिजनेस शुरू करना है, स्टेट उसको इंटरफेयर नहीं करेगा। पॉजिटिव लिबर्टी में आप गरीब का एग्जांपल दे सकते हो कि उसके पास, उसको फ्री छोड़ दिया है लेकिन उसके पास बेसिक सुविधाएं नहीं है। एग्जांपल बेसिकली आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गए, आप थोड़ा सा पॉलिसी रिलेटेड भी ले सकते हो, थोड़ा कंस्ट्रक्टेड वे में उसको प्रेजेंट कर सकते हो, एंड दैट्स इट। सो आई एम गोना कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन अ वे कि आपको बेटर तरीके से समझ आ जाए, एंड कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हमेशा रास्ता देखते रहा करो, बिकॉज एक बात याद रखो, समटाइम्स व्हेन आई जस्ट टीच टू मास्टर स्टूडेंट्स, द बीए ऑनर्स स्टूडेंट्स, लेट्स से आप बीए प्रोग्राम से हो सकते हैं, कोई दूसरा भी कोर्स कर रहे होंगे, हो सकता है ये आपका एज एडिशनल पेपर हो, आप जब तक कॉन्सेप्ट के डेप्थ को नहीं समझोगे, आप स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जा सकते। जब आपको बेसिक समझ में आ गया, अब आप सरकार की किसी भी पॉलिसी को लेकर के उसकी आलोचना कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो वर्क। सो दैट्स इट। मेरी वेबसाइट पे इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स ऑलरेडी अपडेटेड हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं studyshivitkrati.com के ब्लॉग सेक्शन में। अगर आपको नहीं मिलते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। वुड लाइक टू टेल यू वन वेरी गुड न्यूज टू यू ऑल। मैंने ना इस पेपर के जो भी बेसिक डिफरेंशिएशन है, टॉपिक्स है, अगर जितना कम टाइम में हो सके उसका एक शॉर्ट का सीरीज बनाया है। तो मान लेते हैं ये वीडियो मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं वेंसडे को अपडेट कर दूं, तो आपको वेंसडे के बाद जो है वो सारी सीरीज शॉर्ट्स की मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आप शॉर्ट्स वाली कैटेगरी में एक बार देख लीजिएगा। नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी में डिफरेंस, इमेंसिपेशन स्वराज में डिफरेंस, फ्रीडम इमेंसिपेशन स्वराज में क्या डिफरेंस होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, इगैलिटेरिज्म क्या होता है, ऑल ऑफ दिस थिंग हैज बीन कवर्ड बाय me. Bye bye for now. Hit the like button, share this video, and subscribe to Study Shivet Krati 2 for more such kind of video content, because you're going to have exams and I guess you need help, and I'm here to do that. Bye bye.